बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Dear student, our next topic is law of mass action. The law of mass action was presented by two Norwegian chemists named Gullberg and Peter Weg in 1864. The law of mass action was presented by two Norwegian chemists Gullberg and Peter Weg in 1864. The law of mass action show a direct relationship between the concentration of the reactant and product at equilibrium in a chemical reaction. So the statement of this law, according to the law of mass action, the rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the active mass of the reactant. Active mass means concentration of the reactants and product in mole per decimeter cube for a dilute solution and is shown by square bracket. In a simple word, active mass means that mass which take part in chemical reaction to form the product. Let us explain the law of mass action with the help of a general example in which the two reactants A and B are combined together to form the product C and D. Let the molar concentration of the reactant is shown by A square bracket and B by B square bracket. Similarly, the concentration of product is shown by C square bracket and D square bracket. Applying the law of mass action on a given reaction. Let's come to the reactant side. According to the law of mass action, the rate of a forward reaction is direct proportional to the active mass of molar concentration of reactant A and B. Rf is the rate of a forward reaction. This sign is proportional sign. Molar concentration of the reactant A and B. To remove the proportional signs, Kf is used. Kf is called proportionality constant for forward reaction. So that is equation number first. Rf is the rate of a forward reaction. Kf is the proportionality constant for forward reaction. In A square bracket and B square bracket is the molar concentration of the reactant A and B. Come to the product end side. According to the law of mass action, the rate of a reverse reaction is also directly proportional to the molar concentration of the active mass of the product C and D. To remove the proportional sign, a constant is used which is shown by the symbol Kr, which is called proportionality constant for reverse reaction. That is the question number second. At equilibrium, the rate of a forward reaction become equal to the rate of a reverse reaction. It means Rf is equal to the Rr. So putting the value of Rf and Rr in a given equation, which is equal to this equation show the law of mass action. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है और इसके यूनिट कैसे मालूम करेंगे, आइए इसको शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करने के लिए
जो इक्वेशन यूज़ किया जाता है वो ये है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन कितने % होगा, कितने मिकदार में होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा। ये इसके इम्पोर्टेंस इसको आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। के सी क्या चीज़ है? के सी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी से शो किया जाता है। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसमें हमेशा के लिए जो प्रोडक्ट होंगे वो नॉमिनेटर की शक्ल में ऊपर इसको लिखा जाता है, और जो रिएक्टेंट होंगे वो डिनोमिनेटर की शक्ल में नीचे आएंगे। अब आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैथमेटिकली क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डिफाइन कैसे करेंगे? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिलेशन। ये इसकी डिफिनीशन है। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट to the concentration of the reactant at equilibrium in reversible relation is called chemical equilibrium or equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करने के लिए केसी का सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर उसके लिए जो फार्मूला इसमें प्रोडक्ट को नोमीटर की शक्ल में ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट होंगे वो डिनोमिनेटर की शक्ल में नीचे आएंगे। अब आते हैं इस फार्मूले को एक सिंपल मिसाल के जरिए प्रूफ करते हैं कि कैसी बराबर होते हैं रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टेंट A and B are combined together to form the product C and D. जिस तरह प्रीवियस टॉक में मैंने बताया था ना कि जो रिएक्टेंट होंगे उसकी कंसंट्रेशन को, जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो ए की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ए लगाएंगे, बी की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बी लगाएंगे। इस तरह सी की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट सी लगाएंगे, डी की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डी लगाएंगे। अब आते हैं जो रिएक्टेंट साइड है इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active mass of molar concentration of the reactant. RF क्या चीज़ है? RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे जिसको के एफ से डिनोट किया जाता है। के एफ क्या चीज़ है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए reverse reaction is also direct proportional to the active mass of the molar concentration of the product CND। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जिसको KR से डिनोट किया जाता है। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम इस केमिकल इक्वेशन, जनरल केमिकल इक्वेशन को देखें तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट ऑफ करेंगे RF की और RR की, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगा जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर स्टडी किया था। अब इस इक्वेशन के अंदर KF और KR हमारे पास क्या चीज़ है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। KF प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और KR क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल ले और बाकी इक्वेशन को जब रीअरेंज किया जाता है तो इससे हमारे पास इसकी ये शक्ल बनती है। KF और KR बराबर होता है KC के, तो KF और KR की जगह हम KC भी लगा सकते हैं। इसकी जगह KC लगा देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन इससे बनेगा, हाँ मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब है कि इसमें मतलब ये रेशियो होती है हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशियो होती है उसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट होंगे ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट होंगे उसको नीचे लेके जाता है। ये होगी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का होगी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी डेरिवेशन होगी। अब आते हैं इसकी यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। Equilibrium constant has no units, but in different chemical reaction it depend upon on the number of mole of reactant and product in a chemical reactions। Equilibrium constant का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास अनइक्वल होंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आएगा। तीन किस्म की पॉसिबिलिटी है। अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास अनइक्वल है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में बने हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम मकदार में बने हैं तो जो यूनिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आइए इस टॉपिक को मिसालों के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली मिसाल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये कैसे बनता है? जब 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ
तो इससे हमारे पास बनेगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इस इक्वेशन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल है ना वो कितने हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन है। दोनों रिएक्शन के इसने कितने मोल दिए हाइड्रोजन आयोडाइड के, 2 मोल दिए हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल है वो 2 मोल है और प्रोडक्ट हैंड साइड पे भी जो नंबर ऑफ मोल है वो भी 2 मोल है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन के अंदर केसी का यूनिट नहीं होगा। आइए अब इसको प्रूव करते हैं कि इसका यूनिट कैसे नहीं आएगा। इसको केस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका इक्विलिब्रियम फॉर्म एक्सप्रेशन कैसे होगा, जो प्रोडक्ट होंगे वो ऊपर आएंगे। तो उसमें प्रोडक्ट कौन से हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इसको नीचे लिखेंगे। इस इक्वेशन का केसी फॉर्म आ गया। अब आइए इसके अंदर यूनिट लगाते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसके कितने मोल मौजूद है, इसके 2 मोल पर लीटर में मौजूद है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन के मोल है और आयोडीन के, दोनों के 1 1 मोल है। लगाए आयोडीन के मोल भी हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है। अब ऊपर भी 2 मोल है और नीचे भी 2 मोल है। इसकी क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। अब आते ना दूसरे केस की तरफ आते हैं, जिसमें रिएक्टेंट कम मिकदार में होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में होंगे, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा मिकदार में बने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है 1 मोल, डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में क्या देगा, प्रोडक्ट में देगा 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है 1 मोल है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके कितने मोल है, 2 मोल है। मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ने कितने मोल प्रोड्यूस की है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मोल प्रोड्यूस की है, तो 1 मोल से ज़्यादा बनाए हैं। तो इस वजह से इस इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, 1 मोल ज़्यादा बनेगा। आइए इसको कैसी फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को। प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है 2 मोल है और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को नीचे लिखेंगे। इसके अंदर कितनी है, 1 मोल है। कुछ नहीं होता इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 0 है। तो ये इसका कैसी फॉर्म हो गया। अब बात इसके अंदर वही रिपोर्ट ऑफ करते हैं, नंबर ऑफ मोल लगाते हैं, हमारे पास इसका यूनिट कैसे पॉजिटिव में आएगा। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 मोल है और नीचे हमारे पास 1 मोल है। जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसके कितने मोल है हमारे पास, वो 1 मोल है। ऊपर 2 मोल है और नीचे 1 मोल है। जब क्रॉसिंग करेंगे
तो हमारे पास 1 मोल रह जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 1 मोल हमारे पास ज़्यादा रह जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जो Kc का यूनिट हमारे पास आएगा वो आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ आते हैं। जिसमें हमारे पास Kc का यूनिट होगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम मिकदार में बनेंगे, जिसकी वजह से यूनिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो इससे 2 मोल अमोनिया गैस बनेगी। 2 मोल अमोनिया गैस बनेगी। इस इक्वेशन का अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन के कितने मोल मौजूद है 1 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल मौजूद है 3 मोल मौजूद है, और इसने कितने मोल अमोनिया गैस बनाए हैं 2 मोल बनाए हैं। तो कितनी मोल की डिफिशियंसी आ रही है, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है वो 4 मोल हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल है वो 2 मोल हो जाएंगे। इसको मतलब कि हमारे पास 2 मोल की डिफिशियंसी आएगी, जिसकी वजह से इस इक्वेशन के अंदर Kc का यूनिट होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल है वो कम मिकदार में बने हुए हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसको Kc फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को। जो प्रोडक्ट के अमोनिया है इसको ऊपर लिखेंगे 2 मोल है, नाइट्रोजन है इसके कितने मोल मौजूद है 1 मोल मौजूद है, और जो हाइड्रोजन इसके कितने मोल मौजूद है 3 मोल मौजूद है। ये तो इस इक्वेशन का Kc फॉर्म हो गया। अब आगे इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अमोनिया के कितने मोल है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। नाइट्रोजन के कितने मोल है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन के कितने मोल है 3 मोल है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, प्रोडक्ट के 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड जो इसको नीचे लेके इसके कितने मोल है 4 मोल मौजूद है। क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो 2 मोल हमारे पास कम आ जाएंगे। हमारे पास यूनिट आएगा कैसे फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा 1 आवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब 1 मोल तो क्रॉस हो गया तो हमारे पास कितने मोल रह जाएंगे 2 मोल रह जाएंगे। इस इक्वेशन को इस तरह भी ले सकते हैं -2 मोल प्लस 6 डेसीमीटर। लेकिन मेरे पास 2 मोल की डिफिशियंसी है इस इक्वेशन के अंदर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जनरली कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे करते केमिकल रिएक्शन के अंदर 3 किस्म के केस होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास इक्वल है रिएक्शन के अंदर तो यूनिट नहीं होगा Kc का, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास अनइक्वल होंगे तो Kc का यूनिट होगा। अगर रिएक्टेंट कम मिकदार में हो और प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में तो जो यूनिट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम मिकदार में है
तो यूनिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यूनिट की तरफ आते हैं। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.